Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and today we are going to study class 9 science, and in science we'll be studying the third chapter, that is atoms and molecules. So let us quickly get to the notes, the important points of the chapter. By the time there is a question in our heads that what exactly is the matter made of. So we have been studying about matter and whether it is pure or not in the previous chapters. However, we would like to know what exactly is this matter made of. So the answer to this question lies in this chapter. So matter around us, everything that is around us is made up of atoms and molecules. So what are atoms and molecules? First of all, everything is made up of atoms and molecules. Even us, even this computer device or anything, a pen, anything that is around us, that anything that is matter, it is made up of atoms and molecules of different kinds. So first of all, so this was explained by Lavoisier and Joseph L. Proust, and this was approximately 200 to 300 years ago. Right? So in the 18th century, they proposed a theory. They did some experiments and they came out with some important laws about atoms and molecules. So what they said was कि atoms जो है वो बहुत ही छोटे particles होते हैं. They are the building blocks of matter. And they proposed, after doing some reactions, they proposed these laws. So first law is law of conservation of mass. So what does it say? Law of conservation of mass says that during a chemical reaction, mass can neither be created nor be destroyed. Alright, let us understand what this means. It means that when we are reacting some elements, alright, when we are reacting some atoms, when the atoms will react, so the mass of reactants will be equal to the mass of products. So this is what law of conservation of mass says. So again, let me repeat, it is the mass in a reaction, during a chemical reaction, the mass can neither be created nor be destroyed. मान लीजिए आपने 2 grams of products reactants को react करवाया है, so the product will also be 2 grams in mass. Next, law of constant proportion. So what is law of constant proportion? This is also a universal law, and it states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनका मास फिक्स्ड होगा. ठीक है, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे रिएक्ट एंड दे मेक वाटर. नाउ इन अ वाटर मॉलिक्यूल the ratio of the mass ratio of hydrogen to oxygen is always 1:8. It means that 1 gram of hydrogen always reacts with 8 gram of oxygen, right? So this is what the law of constant proportion says, that in a chemical substance या किसी chemical molecule में जो भी react हुए हैं elements, उनका मास का रेशियो सेम होगा, उनका प्रोपोर्शन सेम होगा. राइट, so this is what the law of constant proportion says. And in example, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 in water. ठीक है, तो अब ये लॉस तो उन्होंने दे दिए, बट एट दैट टाइम द रिसोर्सेज वर नॉट अप्रोप्रिएट एंड दे कुड नॉट प्रूव इट परफेक्टली. राइट, तो इसीलिए बाद में उनकी जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया डाल्टन ने. ठीक है, सो डाल्टन केम इनटू पिक्चर late in 18th century, and he proposed his theory, and here is what he actually said. So he said that every matter is made up of very small
tiny particles called atoms. उन्होंने बताया कि जितने भी मैटर, जितना भी कुछ भी मैटर है हमारे चारों तरफ और इवन हम, वो मिलकर बनाए किनसे, बहुत छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स. नेक्स्ट क्या बात हुई, उन्होंने कहा एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जबकि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स अपने आप में सबसे छोटे पार्टिकल हैं. ये डाल्टन ने कहा था. लेटर ऑन दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज एटम्स भी फर्दर ब्रेक हो जाते हैं और उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एटम भी जो है वो फर्दर डिवाइड होना पॉसिबल है. लेकिन डाल्टन उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया और until his death stuck to his point, वो अपनी बात पर ही रहे कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, स्पेशली थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट वाज ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, और वो सेम एलिमेंट के हैं, उनका साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास सेम होगा. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम है उसका मास दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से बराबर होगा, उसका साइज दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के बराबर होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से मेल खाएंगी, सिमिलर होंगी. तो दिस इज व्हाट ही सेड व्हेन ही वांटेड टू से कि एलिमेंट्स और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन साइज एंड मास. और क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड मास. ठीक है, और उन्होंने बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का जो एटम का साइज है वो हाइड्रोजन के एटम के साइज से अलग होगा. और क्या बोला उन्होंने बोला ऑक्सीजन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एटम की, वो हाइड्रोजन के एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होंगी. एंड दीज आर ट्रू पॉइंट्स, राइट. दिस इज ट्रू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वही उनका, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, राइट. हाइड्रोजन ओनली हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. हाउएवर ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसीलिए अब उनके जब साइज अलग होगा, उनका जो एटम है वो अलग है, ठीक है, साइज अलग होगा, मास अलग होगा, और हेंस केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी. सो ही सेड atoms of different elements have different size, shape, size, mass and chemical properties. ठीक है, और क्या बात उन्होंने बोली, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. ठीक है, तो atoms जो है वो रिएक्ट करते हैं whole numbers में. whole numbers in the sense कि एक एटम जो है वो रिएक्ट करेगा एक एटम से. ऐसा नहीं होगा कि आधा एटम गया और जाकर के रिएक्ट कर गया. ठीक है, तो कंप्लीट होल नंबर के फॉर्म में, होल नंबर क्या होता है, राइट, लाइक 0 1 2 3, राइट, लाइक दिस. बट उसमें पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में नहीं रिएक्ट करता एटम. ठीक है, तो एटम जो है वो होल नंबर में रिएक्ट करेगा, जैसे कि 1 किसी 1 से, या 2 किसी 2 से, या 2 किसी 1 से, या 1 किसी 2 से. 1.5 रिएक्ट कर रहा है एटम, ऐसा नहीं होगा, राइट. सो दे विल रिएक्ट इन होल नंबर्स. और एक और फाइनल बात क्या बोली उन्होंने, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें तो उन्होंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स, उनका नंबर सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा. जैसे कि एक ऑक्सीजन है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एक केमिकल सब्सटेंस है, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जाकर कंबाइन होगा, राइट. तो उन्होंने बोला कि ये फिक्स्ड रहेगा तो वो वाटर बनेगा, राइट. तो ऐसा नहीं है कि अगर 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो भी वाटर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा.
ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर तरीके का सब्सटेंस तैयार करेगा जिसकी पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। उसी तरीके से कोई दूसरा अगर ले लेते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर एक कार्बन दो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होंगी, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अगर बात करें तो वो उसका जो रिएक्टेंट्स का जो एलिमेंट्स जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उसमें उनका रेशो, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा, उनका नंबर जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो उन्होंने बात बताई कि कुछ पॉइंट्स अबाउट एटम, और उन्होंने क्या बताया कि एटम्स का साइज, ठीक है। और क्या बताया उन्होंने, एटम्स आर वेरी स्मॉल देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, ठीक है। एटम उन्होंने बताया कि सबसे छोटा एटम ही होता है, किसी भी चीज़ को देख लें अगर किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर सबसे छोटा क्या है, एटम। ये डाल्टन ने प्रपोज किया था। और उन्होंने बताया कि एटॉमिक रेडियस जो है उसकी नैनोमीटर्स में मेजर की जाती है। नैनोमीटर्स इज 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। 10⁻⁹ इज 0.000000001 मीटर, ठीक है। तो दिस इज 10⁻⁹ मीटर। तो इतना छोटा साइज होता है एटम का, ठीक है। जैसे कि बात करें कि हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, जो सबसे छोटा एटम है उसकी बात करें तो उसका साइज है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 0.000000001। तो इतना छोटा साइज होता है किसका, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। बहुत छोटा होता है। तो डाल्टन ने कहा सबसे छोटा यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ उन्होंने सिंबल्स भी प्रपोज किए थे। तो उनका कहना यही था कि भाई कि जो भी हम उसका नाम रख रहे हैं तो उसका नाम का पहला लेटर या फिर नाम के पहले दो लेटर या नाम का पहला लेटर और तीसरा लेटर, थर्ड लेटर, ठीक है, तो उसे आप सिंबल बना सकते हैं, उसे सिंबल की तरह काम में लेंगे, ठीक है। फिर से सुन लेते हैं। डाल्टन सेड दैट किसी भी एलिमेंट, किसी भी जो कंपाउंड या एलिमेंट का जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स और फर्स्ट एंड थर्ड लेटर कैन वर्क एज अ सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का वो सिंबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने ये कुछ सिंबल्स दिए थे। बाकी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका फर्स्ट लेटर H, हीलियम उसके फर्स्ट 2 लेटर्स He, कार्बन उसका फर्स्ट लेटर C, कॉपर, अच्छा कॉपर जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन नेम दैट इज क्यूप्रम, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम जो है, जो सिंबल जो है उसके लैटिन नेम से डिराइव हुआ है Cu, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे ये जो सिंबल्स हैं इनके एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स आप याद रखेंगे। जैसे सोडियम इज इन लैटिन इट इज नेट्रियम, सो दैट इज व्हाई द सिंबल यूज्ड इज Na, ठीक है। पोटेशियम इन लैटिन इज कैलियम, तो इट इज द सिंबल इज K, राइट। सो दिस इज हाउ देयर सिंबल्स वर ओरिजिनेटेड, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये तो हमारी बातचीत हुई एटम की, एटम का क्या साइज होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और एटम के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो हर एटम में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उनके चारों तरफ घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर अपन पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की बात करते हैं, फॉर से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर हैं 8 प्रोटॉन्स, ठीक है।
तो ऑक्सीजन के अंदर है 8 प्रोटॉन्स, पर ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो एटम्स आर इलेक्ट्रिक, के अंदर चार्जेस होते हैं पर वो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर होता है 8, उसके अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 तो है उसके पॉजिटिवली चार्ज और 8 है उसके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अब इसीलिए वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए होल ऑक्सीजन एटम इन होल इज न्यूट्रल। बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है बिल्कुल बराबर सा होता है, विच इज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो वो क्या होता है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड which we calculate as 1 AMU, which is a standard thing which we consider as 1 AMU। तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास है उसे 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU कहा जाता है। तो बात करें अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। तो 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स, हालांकि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मास जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मान लीजिए जैसे न्यूट्रॉन्स का मास है मे बी जितना भी मास है, ठीक है, उसका 1 AMU कंसिडर करते हैं, लेकिन मान लीजिए उसका मास है लाइक द मास ऑफ अ ट्रक विच वेज 10,000 किलोग्राम, राइट। आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया, राइट। सो मान लीजिए 10,000 kg का एक बहुत बड़ा ट्रक है, उसका मास है 10,000 kg। अगर हम बात करें उसका किसी 1 ग्राम के मास से, ठीक है, तो 1 ग्राम मास, ठीक है, 1 ग्राम मास मतलब एक कुछ भी छोटा सा पिन ले सकते हैं, राइट, लाइक एन ऑल पिन, ठीक है। तो अगर ऑल पिन के मास को कंपेयर करें एक ट्रक जो कि 10,000 किलो का है उसके मास से, तो ऑल पिन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एन एटम। तो न्यूट्रॉन का मास जो है वो मान लो जैसे ट्रक का साइज है और उतना मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास है वो ऐसे मान लो कि बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ ऑल पिन इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द ट्रक, ठीक है। या कुछ रफ एग्जाम्पल दिया था, द वैल्यूज आर रियली वेरी स्मॉल, राइट, लाइक 10⁻⁻27 kg, लाइक दैट स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा मास होता है ये, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। इसलिए उसको कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं कैलकुलेट करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मास पर ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या न्यूट्रॉन के मास से फर्क पड़ रहा है? यस। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से फर्क पड़ रहा है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन मास, ठीक है। न्यूट्रॉन is 1 AMU and proton is also 1 AMU, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन एटम की। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर है 8 न्यूट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मास की बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन्स, so that will be 8 AMU plus 8 AMU, that is 16 atomic mass units, right? So I believe this is clear now, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? बिकॉज इट्स नेग्लिजिबल, इट्स वेरी स्मॉल in comparison to the mass of neutron and the mass of proton. However, the mass of neutron is almost equal to the mass of proton, ठीक है। So that is why उन दोनों का मास जो है कैलकुलेट होगा डेफिनेटली, पर किसी इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो मास ऑफ एटम में कंसिडर नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? जो कि सबसे छोटा
किसी मैटर का पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इसका मतलब कि जैसे एटम जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट, इट हैज टू रिएक्ट विथ समथिंग, राइट, किसी दूसरे एलिमेंट से या किसी दूसरे एटम से वो ज़रूर रिएक्ट करेगा इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब स्टेबिलिटी चाहती हैं। ठीक है, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्टेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड, इवन द स्मॉल एटम। ठीक है, तो अब उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए, वो अगर स्टेबल नहीं है तो वो किसी दूसरे एटम को जाएगा और आग जा करके उससे रिएक्ट कर लेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज स्टेबल, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लाइक इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज O2 which is the combination of two oxygen atoms। जब दो ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं, एक O दूसरा O, और जब वो कंबाइन करते हैं, बॉन्ड शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज O2 ऑक्सीजन, जो हम ब्रीथ करते हैं। एंड दैट ऑक्सीजन इज स्टेबल इन नेचर, दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल, राइट। वो फर्दर रिएक्ट करता है बाकी चीज़ों से भी, लेकिन अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम तरीके के एटम्स जो होते हैं, किसी पर्टिकुलर अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर सेम तरीके के हैं। मॉलिक्यूल में भी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स वन। तो मोनोएटॉमिक मतलब कि जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हैं। ठीक है, डायएटॉमिक, डायएटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, और पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें मल्टीपल एटम्स कंबाइन हुए हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम मोनोएटॉमिक की, तो मोनोएटॉमिक कौन हो गया है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइक इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन। ठीक है, तो आर्गन। ठीक है, तो ये कौन सी गैसेस हैं जो कि बिना किसी से रिएक्ट करे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यों एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल होती हैं, ये स्टेबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हीलियम गैस, तो हीलियम गैस कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम, और क्या कहलाएगा वो, He, राइट, हीलियम इज He। सिमिलरली डायएटॉमिक, सो डायएटॉमिक मतलब जिसमें दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, जैसे इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन एटम जब दूसरे ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करेगा, so it will form O2 molecule, oxygen molecule. And the third type is poly. जब poly मतलब होता है दो से ज़्यादा, right? Like multi. तो जहाँ पर दो से अधिक एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो, तो दे विल फॉर्म polyatomic molecule. Like in case of ozone layer, right? तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है, it has 3 oxygen atoms. So 3 oxygen atoms combine and form O3 molecule, which is also stable in nature. आपको पता ही होगा, right? The earth is surrounded by a layer, right? So the earth's atmosphere is covered, protected by ozone layer, O3 layer, which also protects us from harmful ultraviolet rays coming from the sun, right? So it is really very useful and it is also stable. ठीक है, तो O3 is polyatomic molecule, जिसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, atoms of different elements joined together in definite proportions and constitute different type of atoms। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड की बात करें, उसमें केमिकल सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल हैं उसके अलग अलग एलिमेंट्स, किसी मॉलिकुलर कंपाउंड की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर रेशो में ही कंबाइन करते हैं। जैसे कि बात करें H2O, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज, तो वो जो है वो सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं और अलग अलग एटम्स हों तो भी।
ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये इसकी एटॉमिसिटी कहलाता है, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स कंबाइन हैं उस मॉलिक्यूल में, वो उसकी एटॉमिसिटी डिसाइड करता है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। यहां पर कुछ एटॉमिसिटी आपसे शेयर की गई है, देख लीजिए इसको। देखिए, नेम ऑफ द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड, इन द सेंटर, इन द मिडल रो, इन द मिडल कॉलम वी हैव एटॉमिसिटी ऑफ दैट element, and on the right side we have the formula, molecular formula, ठीक है। जैसे बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये आपको बताई थी मैंने इनर्ट गैसेस। तो ये कैसी है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, सिंगल एटम। नेक्स्ट, डायटॉमिक में देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये कैसी गैसेस हैं? ये गैसेस हैं जिसके अंदर दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स जो है कंबाइन हुए हैं। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से मिला है और दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो अब दो एटम्स उसके अंदर हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं डायटॉमिक। सिमिलरली द थर्ड वन इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, और जिसमें जैसे एग्जांपल के लिए लिए तो फास्फोरस, तो फास्फोरस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज P4, ठीक है। तो फास्फोरस जो है वो मिलता है हमें, एग्जिस्ट करता है वो P4 की फॉर्म में। इसका मतलब कि 4 फास्फोरस एटम जो हैं वो कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं P4 विच इज स्टेबल इन नेचर, विच एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलरली सल्फर की बात करें तो सल्फर जो होता है वो ऑक्टा एटॉमिक होता है। ऑक्टा मीन्स 8, तो इसका मतलब उसके अंदर 8 सल्फर एटम्स आर कंबाइनिंग टू गिव अ मॉलिक्यूल S8 विच इज स्टेबल इन नेचर। सो S8 इज ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑर्गेन की स्टेट है, जिस भी स्टेट में वो मिलते हैं, जिस भी तरीके से वो मिलते हैं, नेचुरल अकरेंस है उनकी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलती है विच इज डायटॉमिक, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आर देयर केमिकल फॉर्मूला, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड्स देयर एटॉमिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयंस की, ठीक है। आपको बता देते हैं कि जो भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कल करते हैं उसको ऑर्बिट में। न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस ये जो कि मेन मास होता है एटम का। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कल कर रहे होते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ध्यान रखिए, इसको हम चीज को कंपेयर कर सकते हैं लाइक द सोलर सिस्टम, राइट। सो एट द सेंटर वी हैव द सन एंड द अदर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ठीक है। सिमिलरली एट द सेंटर ऑफ द एटम वी हैव द न्यूक्लियस एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सोलार सिस्टम में होता है उसी तरीके से एटम्स में भी होता है। इट्स जस्ट लाइक कि इसके अंदर कभी कभार एक ऑर्बिट के अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और वो दिया गया है कि किसी शेल के अंदर, किसी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला दिया गया है 2n², ठीक है। 2², इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर प्लीज राइट इट डाउन। The formula, the number of electrons present in a particular orbit can be given by 2n², ठीक है। लाइक अगर बात करें फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर? 2n² में n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर n इक्वल्स टू 1 बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, n की जगह 1 रख देंगे, तो 2 × 1² इज 2। नेक्स्ट ऑर्बिट की बात करें, सेकंड ऑर्बिट की, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं? तो उसके लिए आप n की वैल्यू रख दीजिए 2, तो आपको मिलेगा 2 × 2², और जिसकी वैल्यू होगी 8, ठीक है। तो जो 8 है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैपन और दैट कैन लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। जो दूसरी ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8।
तो इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट के और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। अब वो जो लास्ट ऑर्बिट होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा फाइनल ऑर्बिट जो होती है किसी भी एटम के, जो एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन या तो जा सकता है या इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? लास्ट ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट अगर थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट मीन्स n=3, तो इसका मतलब n=3 के अंदर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे 18, ठीक है। n=2 मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसको 8 इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब उस शेल के अंदर मान लीजिए जो एकदम आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, मान लीजिए उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में किसी एटम के और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? तो उस वक्त वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाए। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोई एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसके अंदर मान लेते हैं उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे उसके 2, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर होंगे उसके 8 और थर्ड ऑर्बिट के अंदर होंगे उसके 1, ठीक है। तो हम बात एक्चुअल में कर रहे हैं सोडियम, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम के होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब उसके लिए ऐसा है कि वो या तो बहुत सारे उसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसीव करे और स्टेबल हो, विच इज़ रियली इम्पॉसिबल, राइट, क्योंकि एटम के साइज को देखते हुए और चार्ज को देखते हुए, क्योंकि हम एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ उस न्यूक्लियस में या उसकी ऑर्बिट में लेकर आ पाना इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा वो? तो वो कोशिश करेगा कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो दे दे, ठीक है। तो वो 17 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम बात करें फ्लोरीन की, ठीक है, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शॉर्टेज होती है उसकी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन से शॉर्टेज होती है, तो वो ये नहीं कोशिश करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल से चले जाएं, वो कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन उसको पास आ जाए तो वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? तो वो क्लोजेस्ट जो है पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने से स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कोई जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने से स्टेबिलिटी मिल रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए या आयन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल होता है वो 3 होता है, ठीक है। 4 में क्या होता है, ठीक है, तो हम बात करें जैसे कार्बन की, तो कार्बन के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो पहली शेल में, फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको स्टेबिलिटी बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो लेने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो वो क्या करता है? वो दूसरे कार्बन एटम के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तुम्हें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम इतने पास आ जाते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तुम्हारे पर भी इफेक्ट होंगे, तुम्हारी ऑर्बिट में भी घूमेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे वो मेरी ऑर्बिट में भी घूमेंगे। तो इसलिए वो एक बॉन्ड बना लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर लेते हैं,
ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के वो अपनी ऑर्बिट जो है वो कॉमन कर लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या होते हैं, वो उन दोनों की ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं, बढ़िया खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है कार्बन के केस में। अब हम बात करें किसी मेटल के केस में, तो मेटल जो होते हैं वो यूजुअली टेंडेंसी रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दे दें। क्यों? क्योंकि उनकी पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स जो है टेंडेंसी रखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले लें। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 या फिर 7 और लाइक दैट। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लें। और जो मेटल्स हैं वो टेंडेंसी रखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स देना या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इतने छोटे से एटम के लिए, मतलब 10⁻⁻10 मीटर्स के साइज के इतने छोटे। अब बात करें हम नेगेटिव की। मान लीजिए कोई एटम जो है वो टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर वो स्टेबल होता है, ठीक है, जैसे कि बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन विल शो अ टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसलिए वो क्या कोशिश करेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश नहीं करेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ले लेगा तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा -2। -2 क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। बस इसी चीज को बोलते हैं आयंस। ठीक है, तो अगर किसी एटम ने, ठीक है, ध्यान रखिए, द चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। कोई भी एटम जो है अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो आयन कहलाएगा। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ले या फिर इलेक्ट्रॉन दे। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज तो वो कहलाएगा एनायन, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। ठीक है, इसको याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए याद रखने का बहुत ही इजी तरीका है कि जब आप एनायन बोल रहे हो तो क्या उसके नाम में ही एन आ गया है। ठीक है, तो जब एनायन बोल रहे हो तो नाम में एन आ चुका है, तो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं हो। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा तो कैटायन है ही। ठीक है, तो कैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनायन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। तो वही जो वैलेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक है, जैसे बात करें द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे थे। ऑक्सीजन एटम जो है वो टेंडेंसी रखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स करके स्टेबल हो जाए। तो वो कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर करेगा, अपने पास में लेगा। उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसकी एक ही ऑर्बिट होती है, और एक ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होती है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा एटम है और उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब फर्स्ट शेल में आपको पता है 2n² फॉर्मूले से अगर फर्स्ट शेल के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए उसके पास एक तो ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, एक या तो लेगा या एक देगा। ठीक है, अगर एक दे भी देगा तो भी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी उसकी उस ऑर्बिट में से। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या टेंडेंसी शो करता है यूजुअली, क्योंकि उसके हाइड्रोजन क्या होता है, छोटा सा होता है और सबसे छोटा होता है और बेचारे के पास न्यूट्रॉन भी नहीं होता। ठीक है, तो बेचारे के साथ में बहुत
ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो यूजुअली क्या होता है, उससे सब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रॉन तो है ही नहीं और प्रोटॉन है वो भी एक, ठीक है। तो उसके अंदर जो चार्ज जो है बहुत कम होता है, इसलिए बहुत आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन कोई भी छीन लेता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी होती है 1, और हाइड्रोजन जब उसका इलेक्ट्रॉन से छीन लिया तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, प्लस, ठीक है। क्योंकि अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है, ठीक है। तो वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड हाउ एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एक एटम की वैलेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्यों, कैसे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है दे पाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो भी, उसको भी शामिल होना पड़ेगा इस रिएक्शन में, ताकि ऑक्सीजन को वैलेंसी जो है ऑक्सीजन की वो पूरी हो पाए और हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी मिल पाए। तो हाइड्रोजन के एक एलिमेंट नहीं, हाइड्रोजन का एक एटम नहीं, 2 एटम्स जो हैं वो कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के। तो हमको कैसे पता चला, वो ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए हमने, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो है 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो है 1। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वैलेंसी का इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि कौन से एटम्स जो हैं किस रेशो में कंबाइन होंगे आपस में केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, टू डू सो इट में लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनको सबको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी लेने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या आपको बताया एक केस में, कार्बन के केस में, कुछ केसेस में वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे अभी आपको, अगर किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। अगर किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसकी वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। तो द वैलेंसी इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, अगर आउटर मोस्ट शेल में उसके मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। सिमिलरली इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, देन इट विल गेन 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली एंड इट्स वैलेंसी विल बी 3 to 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जैसे बोरोन के केस में, ठीक है, यस, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन के केस में देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश नहीं करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये कहलाता है वैलेंसी, ठीक है। If an atom has 4 electrons in outermost shell, then it will share these electrons and hence its valency will be 4. जैसे कार्बन के केस में बताया कि कार्बन will share those 4 electrons with another atom of carbon. So इसलिए उसका गई, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन से डील कर रहा है, so that is why उसकी वैलेंसी will be 4, ठीक है। If an atom has 8 electrons in the outermost shell, then its valency is 0. और अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपको बताया नियॉन के केस में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या है, वो क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। वो अपने आप में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्टेबल है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन्स ना तो लेगा ना ही देगा, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 0।
ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी वैलेंसी भी मेंशन है, ध्यान से इनको देख लीजिए। तो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या ही दे देगा, ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। नेक्स्ट देखते हैं हीलियम। हीलियम जो है उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसके अंदर 2 जो है न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन हैं, तो इसलिए एटॉमिक नंबर तो है इसका 2, और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पर उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है क्या? नहीं, आउटर मोस्ट शेल में उसकी कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल है इलेक्ट्रॉन से, तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो हीलियम इज द स्मॉलेस्ट इनर्ट गैस, ठीक है। और क्या होगा? उसकी वैलेंसी होगी 0। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में देख लो, ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर इज 8, तो दूसरी शेल में उसके हैं मात्र 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी जाएगी 2। एल्यूमिनियम के केस में देख लेते हैं, तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो है 3, क्योंकि वो क्या करता है? वो एक मेटल है, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करता है, तो एल्यूमिनियम के केस में वैलेंसी है 3, ठीक है। और आयनिक फॉर्म में अगर आप लिखें तो देखो, जब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसके ऊपर क्या 2 चार्ज हो जाएंगे? तो वो लिखा इस तरीके से जाता है, O और O के सर के पास में 2-, ठीक है। तो इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के केस में देखिए, तो एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या वो दे रहा है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने दे दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो उसके ऊपर चार्ज, एटम के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? 3+ चार्ज। तो 3+ चार्ज अगर एटम के ऊपर आ गया तो वो बन गया एक कैटायन, और कैटायन उसको जो है वैलेंसी क्या हो गई? उसकी 3 वैलेंसी होगी, वैलेंसी है इसकी 3, और लिखा जाएगा Al, और उसके सर के पास में 3+, ठीक है। नेक्स्ट, सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। कभी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर के खुश हो जाते हैं, कभी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर के खुश हो जाते हैं। जैसे कि बात करें आयरन और कॉपर, ठीक है, तो आयरन जो है वो +2 वैलेंसी भी शो करता है, मतलब 2 वैलेंसी भी शो करता है और 3 वैलेंसी भी शो करता है। तो कभी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करके और खुश हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और कभी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे करके वो खुश होता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली कॉपर भी 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, इस तरीके से, जैसे +1 और +2, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम केमिकल फॉर्मूला की, ठीक है। तो हम केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिखते कैसे हैं? किसी केमिकल फॉर्मूला को, जैसे हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, पर अब उसको डिनोट कैसे करना है, ठीक है। तो वो देखिए, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनकी जो वैलेंसी है और उनके जो चार्ज हैं वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस होना ज़रूरी है। अ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड शुड शो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल फर्स्ट, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें कोई कि मेटल का नाम जो है वो पहले आए और बाद में नॉन मेटल का नाम, ठीक है। जैसे कि बात करें हम सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉमन सॉल्ट, उसके अंदर सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल का नाम पहले लिखेंगे, उसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्लोराइड सोडियम, उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे क्लोराइड सोडियम, उसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो कैटायन है, जो कि प्लस चार्ज है, यूजुअली मेटल्स, उनका नाम पहले लिखा जाता है, उनके सिंबल को पहले लिखा जाएगा। और जो नॉन मेटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली लेते हैं, उनका नाम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो याद कैसे रख सकते हैं? यूजुअली मेटल्स का नाम जो है वो पहले लिखा जाएगा और नॉन मेटल्स का बाद में, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ गैस, इट्स नॉट अ मेटल। तो वो जब रिएक्ट करेंगे तो इसलिए आप पहले बोलेंगे सोडियम एंड देन क्लोराइड, ठीक है।
और ऐसे नहीं करेंगे कि लिखने में भी उसको ClNa नहीं लिखेंगे, उसको NaCl लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो कैटायन पहले, एनायन बाद में, सिंपल। नेक्स्ट, इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक, अगर मान लीजिए ये तो चलिए ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर एक ही एटम था, ठीक है, दोनों का एक एक एटम था जो कि कंबाइन हुआ और प्रोडक्ट दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉलीएटॉमिक है, मतलब मल्टी एटॉमिक है, या तो डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, टेट्राटॉमिक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उस केस में क्या करेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए OH माइनस, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है, तो Mg2 प्लस इस मैग्नीशियम आयन, इसमें मेटल क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, OH माइनस नहीं है। अब OH के ऊपर देखिए चार्ज क्या है, तो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट के ऊपर लिखा है -1, ठीक है, -1 नहीं लिखा है, माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब यही है, 1 नहीं लिखा है, तो उसका मतलब अपने को यही मानना है कि वो 1 है। तो OH के ऊपर मान लीजिए लिखा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब उसके ऊपर है -1 चार्ज। मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर लिखा है +2, इसका मतलब उसके ऊपर है +2 चार्ज। तो अगर चार्जेस बैलेंस करने हैं, डेफिनेटली चार्ज तो बैलेंस करने होंगे ही, यही तो पहले पॉइंट था, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, क्योंकि वैलेंसीज जो है आयंस के ऊपर वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, OH माइनस जो है उसका क्या एक रिएक्ट करेगा क्या मैग्नीशियम से, नहीं, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए और न्यूट्रल करने के लिए, चार्ज खत्म करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स तो एक OH माइनस ने ले लिया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो दूसरे OH माइनस को बुलाएगा और बोलेगा कि पैर के पास में, पाँव के पास में छोटा सा 2 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जो है या मेटल जो है वो हो सकता है कि जो कैटायंस हैं, जो एनायंस हैं, वो पॉलीएटॉमिक हो, तो पॉलीएटॉमिक होंगे तो भी उनको पूरे ग्रुप को ही बताना है आपको, क्योंकि पूरे ग्रुप के ऊपर वो चार्ज है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, पूरे ग्रुप OH के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए पूरे ग्रुप को ही आपको बताना है, लिखना है, और लिखने के लिए ऐसे यूज़ करेंगे ब्रैकेट और फिर उसके पाँव के पास में कि कितना जो है वो कितने एनायंस या कितने कैटायंस जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला लिखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, देखिए इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अब वो क्या है देखें, तो वैलेंसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला उसका लिखा हुआ है CaOH2, ठीक है। और ये मेथड जो है वो कहलाता है क्रिस क्रॉस मेथड। और क्या होता है ये मेथड, देखिए, तो हमें पता है कैल्शियम वैलेंसी है 2, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ऑफ कोर्स उसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 OH ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब उसके कैसे लिख सकते हो, तो जो कैल्शियम है उसके सर के ऊपर, ठीक है, Ca के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। जैसे इधर Mg के ऊपर +2 चार्ज है, इसी तरीके से Ca के ऊपर भी यहाँ पर +2 चार्ज है। तो +2 चार्ज जो है उसको तो ले जाओ आप दूसरा जो एनायन है उसके पाँव के पास, ठीक है। जो एनायन है, इस केस में एनायन क्या है, इस केस में एनायन है OH माइनस, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है OH माइनस इस केस में एनायन है, तो उसके पाँव के पास में आप इसको ले जाओ, सिंपली आप उसके पाँव के पास में इसको ले जाओ, किसको, +2 को, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें OH की,
विच इज द एनायन, उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है -1। तो उस -1 को उठा करके, ठीक है, तो -1 को चार्ज का जो माइनस है प्लस है उसको भूल जाओ, बस वो नंबर देखो, नंबर जो है वो 1 है, तो 1 उठा करके ले आओ और कैटायन के पाँव के पास में। कैटायन इस केस में क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के आगे पाँव के पास लिख दो छोटा सा 1, ठीक है, और 1 को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि वहाँ पर अगर नहीं मेंशन है तो वो 1 ही है, ठीक है। तो 1 जैसी दे रखी है इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लेंगे। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो है 3। तो एक काम कीजिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी को लिखा कर उठा करके रख दीजिए ऑक्सीजन के पाँव के पास, और ऑक्सीजन की वैलेंसी को उठा करके रख दीजिए एल्यूमिनियम की पाँव के पास। तो इसका मतलब क्या है कि 2 एल्यूमिनियम जो है वो 3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो केमिकल फार्मूला जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम उसकी वैलेंसी +3, तो उसको उठा करके, तो 3 को उठा करके रख देंगे पाँव के पास, किसके, जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड, दूसरा मॉलिक्यूल है या दूसरा एटम है जिससे भी वो रिएक्ट कर रहा है, उसके पाँव के पास उठा करके उसको रख देंगे। और जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी है 2, तो उसकी वैलेंसी को उठा करके रख देंगे इसके पाँव के पास जो कि रिएक्ट कर रहा है दूसरा एटम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के इसका मतलब 2 एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 3 एटम से, और वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, it is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance. It is expressed in atomic mass unit, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बता रहे थे हम कि molecular mass of an element क्या होगा कि उसके अंदर जो जितना भी एटॉमिक मास है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं उनका मास जो है वो कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे कि हम इधर बात कर रहे हैं H2O की, पानी। तो H2O के अंदर देखेंगे तो 2 तो हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो मास होगा एक मॉलिक्यूल पानी का, एक मॉलिक्यूल H2O का। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 प्रोटॉन है, और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास 16 क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक मास है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो H2O मॉलिक्यूल के अंदर है 2 तो हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। H2O के अंदर देखेंगे ध्यान से, 2 है हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या हम दोनों का, उनका सबका मास निकाल सकते हैं? तो हमको पता है 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन का मास है 1 एटॉमिक यूनिट, 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, 2 AMU, ठीक है। और हमें पता है 1 ऑक्सीजन का मास है 16 AMU, तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? तो इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 यूनिट्स या 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और वो किसका मास है? वो एक मॉलिक्यूल वाटर का मास है, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है। तो फॉर्मूला मास भी यही होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो उसका फॉर्मूला है, कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है जो उसका फॉर्मूला है उसका मास क्या है। जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, तो उसके अंदर Na का मास जो है वो है 23, एक Na का, एक Na एटम जो है नेट्रियम एटम या सोडियम एटम, उसका मास है 23 AMU। और क्लोरीन, क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5, क्लोरीन का एक एटम का मास है 35.5, तो इसलिए NaCl का मास हो जाएगा 58.5 यूनिट्स, which is the combination of the mass of the sodium atom, one sodium atom and one chlorine atom. So when they'll combine, the sum would be, they'll form sodium chloride, and the sum of one of sodium chloride would be 23 plus 35.5, that is 58.5 AMU or units, ठीक है। अब उसके बाद बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है, मोल कॉन्सेप्ट,
ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ मोल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ मोल? तो मोल क्या है? इट इज डिफाइंड एज 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, and is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। ठीक है। तो एक मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखना, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब ये तो कहलाता है मोल, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि हमारे पास 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये 1 मोल की वैल्यू है। अब मोलर मास क्या होता है? तो हमारे पास मान लेते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल है। इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वही कहलाएगा क्या? ऑक्सीजन का मोलर मास, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा दैट विल बी मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द मोलर मास। और वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? क्योंकि अब मोल्स की बात हो रही है, मोल्स में क्योंकि नंबर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, काफ़ी 6.022 इंटू 10⁻23 काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। इसलिए अब उसकी बात करने के लिए हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को ही हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम अगर वे करेंगे, उनका मास निकालेंगे, सो दैट वुड बी, मॉलिक्यूल्स को हम वे करेंगे तो दैट वुड बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक। अब देखिए अब आपको पता ही है 1 यूनिट 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो पता है आपको कि एक एटम जो हाइड्रोजन का है उसका मास क्या है? 1 एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में मौजूद होते हैं कितने हाइड्रोजन एटम्स? ठीक है, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं किसमें? 1 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा है वो पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितना है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के। अब ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आपको पढ़ करके और याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात आती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है इन 1961 C12 आइसोटोप वाज चोजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो अब बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स आर